और उस समय मैकनमारा थे, रॉबर्ट मैकनमारा। बिल्कुल सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। बिल्कुल ताज़ा तस्वीर, ये इस वक्त की लाइव तस्वीर है आपके सामने, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख इस वक्त स्क्रीन पर हैं। उनके हाथ में टॉकिंग पॉइंट्स हैं दोनों के जो हम लोग यूज करेंगे। अभी इजराइल में जो सिचुएशन है दीपक सर, कैसे आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, कैसे आप इन्हें डिस्क्राइब करेंगे? द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, आप जो मर्जी उसके बारे में कहिए, इट स्टिल इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली सबसे ज्यादा शक्तिशाली है यूनाइटेड स्टेट्स। ये टोटल स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट है और इजराइल का हौसला इससे बहुत। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं जरा। Unequivocal support you have given Israel during these trying times, a support that reflects the overwhelming will of the American people. I've seen your support every day in the depth and breadth of cooperation that we have had since the beginning of this war. A level of cooperation that is truly unprecedented. जिस तरीके का समर्थन और सहायता आपने दी है वो अभूतपूर्व है। We see that support in your steadfast commitment to provide Israel with the tools we need to defend ourselves. We see that support. आपने हमें जिस तरीके के उपकरण, जिस तरीके की सहायता मुहैया कराई है, उसके लिए न केवल हम आभारी हैं बल्कि हम उसे एक मजबूत समर्थन की तरह देखते हैं। और केवल ये शब्दों की सहायता नहीं है, हम इसे एक्शन में भी अपने साथ देख रहे हैं। In the moral clarity that you have demonstrated from the moment Israel was attacked. और इजराइल जब से बना है उसके बाद से अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा है। And the forces of barbarism. You describe what Hamas did as sheer evil. जो कुछ हमास ने किया है वो पूरी तरीके से Hamas murdered children in front of their parents. बुरा है। And parents in front of their children. They burnt people alive. They raped and murdered women. They beheaded soldiers. They searched for the secret hiding places where parents hid their children. And just imagine, Mr. President, हमास के आतंकियों ने घरों में घुसकर उन जगहों पर भी लोगों को तलाशा जहां लोग शरण लेने के लिए छुपे हुए थे। As the monsters discovered, found out their hiding places. ये राक्षसी कार्रवाई थी। Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination. हम ये जानते हैं कि हमारे इस गुस्से के अंदर आप भी साझेदार हैं। On October 7th, अक्टूबर 7 की सुबह Hamas murdered हमास ने 1,400 Israelis, maybe more. 1400 से ज़्यादा This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29 जो कुछ 7 अक्टूबर में इजराइल में हुआ, That is why उसका मतलब है अमेरिका में करीब 50,000 is another day that will live in infamy. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमास आईसिस से भी खतरनाक है, बुरा है। हमास नियो नाजी है, नाजियों की तरह है। United to defeat the Nazis and united to defeat ISIS. The civilized world must unite हम नाजियों को हराने के लिए, आईसिस को हराने के लिए एकजुट हुए थे, उसी तरीके से हम हमास को हराने के लिए भी एकजुट हैं। And we will defeat Hamas and remove this हमास को हरा कर from our रहेंगे lives. और उसको अपनी The जिंदगियों से forces of खत्म करेंगे। civilization will prevail for our sake, for your sake, for peace and security in our region and in the world. ये दुनिया में हमारे क्षेत्र के अंदर शांति और व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि हमास को हराया जाए। There's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Your visit here is the first visit of an American president in Israel. इजराइल के लिए दोस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। It is deeply, आप इस समय इजराइल के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हैं। It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel. मैं जानता हूं कि मैं इस समय इजराइल के सभी लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। Thank you for standing with Israel today, धन्यवाद राष्ट्रपति जी, tomorrow, और इजराइल के लोगों के प्रति की तरफ से मैं आभार जताता हूं। Mr. Prime Minister, thank you very much. Look, folks, I wanted to be here today for a simple reason. शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, मैं सम्मानित हूं यहाँ पर पहुँचकर। I've got my great Secretary of State here. He's been here for a lot.
but I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered, has been pointed out. जैसा आपने कहा, हमास के लोगों ने नरसंहार किया है। It is not hyperbole to suggest slaughtered, and including 31 Americans as part of that. और जिन लोगों को मारा गया उसमें 31 अमेरिकी नागरिक भी हैं, including children. उन्होंने कई लोगों को बंधक बनाया है, जिसके अंदर महिलाएं और बच्चे भी हैं। From Hamas, we're thinking it's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. जो कुछ हमास ने किया वो हमारी कल्पना से परे है। Committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. जो कुछ उन्होंने किया है उसकी रोशनी में तो आईसिस भी तार्किक लगता है। Really are. And Americans are worried. Americans are worried because they know this is not an easy field to navigate what you have to do. But अमेरिका के लोग ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना आसान नहीं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको हर वो चीज़ मिले जिससे आप अपने लोगों की रक्षा कर सकें। हमको ये भी दिमाग में रखना होगा कि फिलिस्तीन के लोग भी इस समय पीड़ित हैं, क्योंकि इस घटना ने उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। Taking too much time, but the point is this: that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure, so we got to overcome a lot of things. And it also means encouraging, life-saving. जिस तरीके से गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ, लोग मारे गए, उससे भी हम बहुत दुखी हैं। And well, anyway, that's who we are. Not just me, but I mean that's who the United States is. And केवल मैं नहीं, पूरा अमेरिका। It's just not the example of our power; it's the power of our example. It's almost as important. The world's looking. Israel has a value set like the United States does. And other democracies. And इजराइल के भी अपने मूल्य और आदर्श हैं, जैसे कि अमेरिका के अपने मूल्य और आदर्श हैं, और इस तरीके के मूल्य और आदर्श लोकतांत्रिक देशों के लिए ज़रूरी होते हैं। Thank you for having me, and I'm looking forward to having a thorough discussion about where everybody goes from here. But thank you. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच सार्थक चर्चा होगी। Their courage, their commitment, their bravery is मैं इजराइल के लोगों की, उनके साहस की, उनकी हिम्मत की सराहना करता हूं। I'm proud to be here. Thank you. इस वक्त आप सुन रहे थे और दोनों की तरफ से स्टेटमेंट आया। इसके बाद ढेर सारे सवालों की बौछार, उनका उत्तर कितना मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त तक दोनों तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हमास जो है वो आईएसआईएस से भी खतरनाक है, उससे भी ज्यादा बर्बर तरीके से हमला किया गया। हमास ने जो किया वो तो कल्पना से परे है, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक संगठन है और हमास ने कई लोगों को बंधक भी बनाया। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने डिस्क्राइब किया कि बच्चों को, महिलाओं को किस तरह से मारा भी है और कई को बंधक बना ले गए। उन्होंने यह भी बताया कि जितनी तबाही हुई है इजराइल के अंदर, उसको अगर आप यूएस से उसकी तुलना करें तो लगभग ऐसा लगेगा कि जैसे यूएस के 50,000 लोगों को एक साथ मार दिया गया हो। और इस बात का एहसास आपको है
यह भी कहा उन्होंने जो बाइडेन से कि आपको इस बात का एहसास है और आप हमारे साथ खड़े हैं, एक्शन से भी साथ खड़े हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, तो आपने दोनों ही नेताओं को सुना और जिस तरह से 7 अक्टूबर का जिक्र यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा एक काला दिन था जिस तरह से हमास ने हम पर हमला किया, महिलाओं को, बच्चों को, यहां तक कि जो सेफ शेल्टर्स थे जहां पर शरण लिए हुए थे महिलाएं और बच्चे, वहां तक ये हमास के आतंकी पहुंचे और बर्बरता दिखाई और आईएसआईएस से खतरनाक संगठन हमास को बताया और यह भी कहा कि सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हमास एक बड़ा खतरा है और अमेरिका का हमारे साथ होना, अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसे वक्त में, इतने मुश्किल वक्त में इजराइल में मौजूद होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही जो बाइडेन ने भी ये इस बात का आश्वासन दिया बेंजामिन नेतन्याहू को कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है, हम समझते हैं कि यह आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है और हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ हैं, आपको हर मुमकिन मदद हम पहुंचाएंगे। तो हमास ने इजरायलियों की हत्या की है, बाइडेन ने इस बात को स्वीकारा है। साथ ही जो बाइडेन ने यह भी बताया कि अमेरिकी नागरिकों की भी इस हमले में, इस युद्ध में जान गई है और इजराइल के साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रणय, जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स हमने दोनों नेताओं की सुनी, एक बात तो साफ है कि ये बात आइडेंटिफाई हो चुकी है कि कॉमन दुश्मन है, वो है आतंकवाद हमास के रूप में। बिल्कुल, हमास को दोनों ही नेताओं ने एक सुर के अंदर उसे नकारा है, उसे खारिज किया है, उसकी आलोचना की है। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सावधानी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लोगों की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने जो वैल्यू सेट की बात की कि अमेरिका के साथ भी किसी कॉम्बैट के अंदर आपके आदर्श और मूल्य क्या है, किन प्रैक्टिसेस के साथ आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल के एक्शन के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका की और एक वर्ल्ड सुपर पावर होने के नाते, उसके नेता होने के नाते उनके सामने चैलेंज ये है कि उन्हें बहुत सारे हितों को इस समय साधना है, एक बैलेंस बनाना है, जिसका दबाव इस समय इजराइल के ऊपर नहीं है। क्योंकि इजराइल एक तरीके से कहा जाए इस समय एक रिवेंज की कार्रवाई के अंदर है और उसे केवल अपने पब्लिक के सामने यह बताना है कि उसने एक जस्टिस किया है और हमास को खत्म किया है। Z News।